fear of speaking English इतना ज्यादा है in public या in kids that they never get to cross that bridge of learning English language. So let's start the session with your introduction because you are new to the audience. Okay, so my name is Anamika Shukul, and I am currently put up in Gurugram, Haryana. And I was born in Lucknow, and I've done my schooling across many cities like Indore, Gorakhpur, Calcutta, and many such cities. But currently, I am in Gurgaon for like 10 years or so. And I am a public speaking and creative writing trainer at Planet Spark, which is an edtech platform where we train students for public speaking, English language, and communication skills. Apart from that, I'm also a YouTuber, a passionate traveler, and I like reading books and listening to music. Yeah, that's great. Moving forward, I'm here with the concern, as I told you, that we are concerned about the speakers or those learners and their problems while learning English. हम अपने आसपास Right. देखते हैं कि अक्सर बच्चों की समस्या होती है कि अंग्रेजी सीखने के दरमियान उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर वो उनको कैसे फेस ऑफ करें, उनसे कैसे कहीं न कहीं वो समस्याओं को कैसे वो दूर करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और आई थिंक you may have experienced the same. First of all, to your audience and to my audience, whoever is watching this video, the thing is ki to recognize a problem is a solution in itself. Okay, आपको ये बात पहले समझनी होगी that you are facing a difficulty in speaking English. Yes. अब what happens is कि when you recognize this problem ना that you are facing a difficulty in speaking English या आपको मुश्किल आ रही है, तो आप क्या करते हो? आप डर जाते हो। डर के you do not practice English only. कि ओके अगर मैंने इंग्लिश बोली, अगर वो गलत हो गई, तो अदर पीपल आर गोइंग टू जज मी। ठीक है, लोग क्या कहेंगे कि डर से यू डू नॉट प्रैक्टिस योर इंग्लिश, कि मैं गलती कर दूंगी, इस चक्कर में अगर मैं करूं ही ना, तो फिर तो इट इज नेवर गोइंग टू चेंज ना, देन तो यू आर स्टक ऑन स्टेज 1 ओनली। Yes, yes. So what I feel is to recognize a problem and then to work on its solution. Okay. Second thing is कि fear of speaking English इतना ज्यादा है in public या in kids that they never get to cross that bridge of learning English language. Yes. Okay, so what I feel is कि अगर आप इस psychological fear से निकल जाएंगे कि English एक बहुत ही difficult language है या आपको काफी basics सीखने पड़ेंगे, so there only you are 20% you are above the category of people, because many people out there are very scared of speaking English in public. जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि समस्या यहाँ है कि डर से हम शुरू ही नहीं करते हैं। इस डर से कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमारी गलतियों को निकालेंगे, तो हम कहीं न कहीं शुरू ही नहीं करते हैं और इस वजह से जब शुरुआत नहीं करते तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो that is the problem that no one takes an initiative to speak English, so that's why they never become able to learn English. इसका एक सॉल्यूशन बहुत क्विकली ये हो सकता है कि इफ यू आर आपके आसपास आपको कोई नहीं चाहिए, ठीक है, रहने दीजिए, यू डोंट नीड द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपके पास आपका अपना सपोर्ट है। Yes. ओके, आप जाइए, यू प्रैक्टिस इट इन द मिरर, अकेले में प्रैक्टिस करो और खुद को रिकॉर्ड करके भी देख सकते हो दैट हाउ यू आर लुकिंग, कहाँ, और अपनी गलतियों को खुद ही इवैल्यूएट कर लो कि अगर मैंने यहाँ मिस्टेक की है, ये प्रोनाउंसिएशन में गलती है। Yes. बार बार प्रैक्टिस करने से व्हाट हैपेंस इज यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग दैट लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल एज वेल। Yes. Yeah, exactly. I also tell my students that they always make an excuse. हमेशा उनका बहाना होता है कि अरे प्रैक्टिस किसके साथ करें। तो हम तो कभी-कभी मजाक में ये बोल देते हैं बच्चों को कि माँ से करिए, पिताजी से करिए, कोई भी जो नहीं जानते उनसे भी करिए, एटलीस्ट आप बोलेंगे तो सही। लेकिन एग्जैक्टली जो आपने कहा कि हम मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, so we can also take the help of technology, and we may record our voice or we may record ourselves so that we may notice our mistakes
मतलब इस तरह से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं कि हमने कहाँ गलतियां करी। और मैं खुद का ये एक्सपीरियंस कहना चाहूंगा कि मैंने खुद ये चीजें एक्सपीरियंस करी है कि शुरुआत में बहुत सारी गलतियां होती थी और जज भी किया गया, जैसा कि आपने कहा कि जज किया जाता है, ये सच है कि आपकी गलतियां निकाली जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो गलतियां भी दूर नहीं होती हैं। और मैंने खुद घंटों जब अकेला रहता तो खुद से ही प्रश्न पूछता, खुद से ही जवाब ढूंढता, कहीं ना कहीं अंग्रेजी में ही जो कुछ भी मुझे आ रहा है, खुद मन में जो सवाल है उसको खुद से पूछना, फिर खुद से उसको आंसर करना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता करेक्ट। एक और बात जो स्पेशली इंडियन ऑडियंस के रिगार्डिंग में मैं ये कहना चाहूंगी है। जी। दैट एक्सेप्टेड दैट आप जो हैं एक इंडियन हैं, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ओके। हम लोग बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस यस। बोलते हैं एंड इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, ओके। यस। आप उसको सीख रहे हो, इट इज नॉट इनबिल्ट। जैसे कि अमेरिका में, इंग्लैंड में उनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, ओके। यस। सो इसलिए वो डिफरेंस आ जाता है। तो आप वो कंपेयर करके ना अपने आप को बहुत नीचे आंकते हो। बच्चे क्या करते हैं, वो उस चीज से कंपेयर करते हैं, फॉरेन के लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं यस। और फिर यस। अपने आप को खुद ही से मान लेते हैं कि हम तो नीचे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी लैंग्वेज दूसरी है, आप मदर टंग दूसरा बोलते हो। जब बच्चा छोटा होता है, जब फैमिली में होता है, तो उसको क्या हिंदी बोलते हैं हम उसके साथ, यस। या कोई रीजनल लैंग्वेज बोलते होंगे, तो वो उसने वही ग्रास्प किया है ना। तो ये आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आप डेवलप करोगे धीरे धीरे, वो आपके लिए एक स्किल है। जैसे कि हम मैथ्स सीखते हैं, ठीक है, इट्स अ स्किल। वैसे ही लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल। तो उसको इस तरह से लीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। धीरे धीरे यू आर गोइंग टू गेन दैट स्किल। आप में पूरा यस। टैलेंट है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। बट बच्चे क्या करते हैं, वो अपना कंपैरिजन तुरंत ऐसे लैंग्वेज और ऐसे लोगों से करते हैं जो कि ऑलरेडी वो उनका मदर टंग है। तो ऑब्वियसली अब हिंदी में हम बात करेंगे तो हमारी फ्लुएंसी क्या कहते, कोई टिक ही नहीं सकता है जी। ना। जी तो बिल्कुल। वही उनके साथ वही फैक्टर है कि अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तो उनकी फ्लुएंसी क्या है, कोई नहीं देख सकता। बट हमें हमारा अपना एक, कि हमारा लैंग्वेज लर्निंग हो, हमारी स्किल्स डेवलप हो, इसलिए हमें इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। तो हम अपना देख के चलेंगे, किसी से और से कंपेयर नहीं करना है हमें। जी। जी बिल्कुल, एकदम से कुछ नहीं हो जाता। बच्चों को लगता है कि नहीं, अचानक से हम ऐसे शुरू करें जैसे कि सबसे एक लाइक जो स्पीकर को वो देखते हैं सामने या फिर बहुत सारे लोगों को देखते हैं बोलते हुए, तो अचानक से वैसा तो नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी हमारा टारगेट होता है तो हम उसको सडनली अचीव नहीं कर सकते। कहीं न कहीं हमें एक समय देना होता है खुद को और पेशेंटली जो है हमें वर्क करना होता है उसके ऊपर, तभी जाकर। और एक और बात कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये क्लेम करा जाता है कि हम आपको 1 मंथ में अंग्रेजी सिखा देंगे या 3 मंथ्स में सिखा देंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या यदि यदि स्पीकर यानी जो सीखना चाहता है वो प्रैक्टिस नहीं करे तो क्या ये कभी संभव है? नहीं, विदाउट आपका एफर्ट, विदाउट योर ओन प्रैक्टिस, विदाउट योर ओन विलिंगनेस, कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ओके। आपको खुद को इतना डेडिकेट करना होगा कि आप, यस आई एम विलिंग टू लर्न दिस लैंग्वेज, क्योंकि डिफिकल्टी आएगी। कोई यस। भी काम आप करने जाते हो, मुझे तो नहीं लगता कि स्मूथली हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके साथ। हो सकता है कि सब कुछ स्मूथली ना भी हो, बट क्या है कि हमें फोर्ज करना है आगे, हमें डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाने हैं कि हम लैंग्वेज सीखें। व्हाट हैपेंस इज कि ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको एक हेल्प प्रोवाइड जी। कर जी। सकते हैं, या आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं कि ऐसे 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 अगर आप स्टेप्स लोगे तो आप इंग्लिश सीख सकते हो। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु वांट्स टू लर्न द लैंग्वेज। तो एफर्ट्स आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, यस बिल्कुल। क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्पून फीड करा दूं कि अच्छा आप ये सेंटेंस बोलोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट दिखोगे। ऐसा नहीं जी। होगा। जी। सिनेरियो अलग हो जाएगी, जी बिल्कुल। लोग अलग हो जाएंगे। आपको बात खुद से करनी है। आप सोच रहे हो ना, आप जो सोच रहे हो वही आपको बोलना है। अब आप क्या सोचोगे ये भी अगर आपको कोई बता देगा तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जी। तो आ, अपने एफर्ट्स जी। को लगाइए। I think you agree that vocabulary plays an important role. वोकेबुलरी अच्छी एब्सोल्युटली। होनी चाहिए तभी जाकर हम कहीं न कहीं हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं यस। वर्ड्स जो यस। है उन्हें हमें सीखते रहना चाहिए। मैं भी बच्चों से यही कहता हूँ कि अंग्रेजी सबको आती है, लेकिन वो वर्ड्स ही उनके पास नहीं होते
जिनके जरिए वो एक्सप्रेस कर सके खुद को अंग्रेजी में। राइट, राइट। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हर बच्चे के पास डिक्शनरी होना मुश्किल है, जी राइट? प्रॉपर जो डिक्शनरी होती जी है इंग्लिश वाली। अब हर बच्चे को हम ये नहीं बोल सकते कि आप जाओ जाके खरीद के लेकर आओ, फिर वो जी जी सोचेगा मैं खरीद के जाऊं, ये करके आऊं, तो उनके एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। सो आजकल क्या है कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन जी होता है ना? तो लेट मी टेल यू किड्स कि आप इतने सारे वीडियोस देखते हो, वीडियोस बनाते हो, सब कुछ करते हो, दैट इज गुड, अच्छी बात है। बट व्हाट यू कैन डू इज देयर आर एन नंबर ऑफ एप्स जहां पे आप डिक्शनरी एप्स जो आप यूज कर सकते हो। तो जी उनका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप के पास बुक वाली डिक्शनरी है जो होती है, तो उसमें ना आप प्रोनाउंसिएशन को सुन नहीं सकते जी हो, जी यू रीड इट एंड आप जी खुद ही ट्राई करते हो। बट इफ यू डाउनलोड सम एप्स, उसमें मैंने ये देखा हुआ है कि दे प्रोवाइड प्रोनाउंसिएशन जी थिंग बिल्कुल आल्सो, जी कि वो कैसे प्रोनाउंस करना है वो आपको ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी बता देती जी है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप एटलीस्ट दिन में से 10 मिनट या 5 मिनट मिनिमम निकालिए, एक वर्ड को प्रैक्टिस करिए, जी उसका मीनिंग लर्न करिए, जी एंड उसको फिर थ्रू आउट द डे ना उसको कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश करिए। आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, एंड पेपर रीडिंग, डिक्शनरी, ये सब बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो आपको टीचर्स बताते रहते हैं। बट गिवन दैट आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड जी हैं, बिल्कुल सो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे या तो सर्च कर लो कोई वर्ड और जी उसका जी प्रोनाउंसिएशन सीखो। एंड काफी सारे कि इफ यू जस्ट सर्च कि न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, यू आर गोइंग टू गेट एन नंबर ऑफ वीडियोस, यस 100 वीडियोस आ जाएंगे। सीखते रहो, सीखने के लिए कोई सीमा नहीं है, जी जी बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एक वर्ड अगर आपने दिन का ले लिया, तो आपको उसको मेक श्योर कि यू यूज इट इन योर डे टू जी डे कॉन्वर्सेशन। जी जी बहुत सारे ऐसे हैं, डिक्शनरीज हैं, चाहे वो इंग्लिश टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और जरिया जो भी हो, बस कहीं ना कहीं वर्ड्स हमें सीखने होंगे, नए वर्ड्स सीखने होंगे, जो जहां पर हमें परेशानी आती है, जहां हमें लगता है कि नहीं ये सेक्शन हमारा वीक है, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए वोकेबलरीज को हमें डेली लाइफ यूजिंग जो जो वर्ड्स होते हैं उन्हें सीखना होगा, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पीकर बन सकेंगे। बिल्कुल। स्पीकर बनने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको खुद से अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना जी आना जी चाहिए, विदाउट द फियर ऑफ अदर पर्सन थिंकिंग कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। इसकी वजह से वो एक हिंदी में बोलते नहीं है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी जी तो वो उस फियर से निकलना पड़ेगा। जी ओके, एंड आई नो दिस, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं देखूं कुछ साल पहले, तो आई डोंट थिंक कि मैं इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकर थी। जी जी आई वॉज गुड इन इंग्लिश थ्रू आउट माई स्कूलिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं था, बट मोर ऑफ क्या होता है कि बच्चों को आता है इंग्लिश बट दे आर शाई। जी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको पता है, उनके साथ आप बात करोगे ना, वो समझ रहे हैं सब कुछ हो रहा है, बट दे आर शाई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑल टुगेदर। अब वो शाई फैक्टर को भी आपको हटाना है फॉर अ गुड स्पीकर। जी टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फियर ही हटा देना होगा कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। जी आप अपना पॉइंट रखिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट जी रखिए। बिल्कुल फिर ऑल्सो यू हैव टू बी केपेबल कि आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे, तो आपको उसको भी पॉजिटिवली लेना है कि ठीक है, जी कोई इंसान मेरे अंदर ये कह रहा है कि ये चेंजेस लाओगे तो बेटर होगा, तो यू एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। उसको सुन के अगर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपके ग्रोथ के लिए स्कोप जी कहाँ है? जी जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आई कैन अंडरस्टैंड वेल, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, बट आई कांट स्पीक, मैं बोल नहीं पाता। तो मैं इसके लिए बच्चों को सीधा ये कहता हूँ कि पहले आप ये सोच लो कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो वही सही है, बस ये सोच कर बोलना होगा। कहने की हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए, तभी जाकर ये हिचक जो है, हेजिटेशन जो है, ये खत्म हो पाएगी, और तभी हम बोल पाएंगे। और क्रिटिसाइज तो हर किसी को किया जाता है शुरुआती दौर में, और कहीं ना कहीं इसी क्रिटिसिज्म को फेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको उसको पॉजिटिवली लेंगे ना अगर जी आप जी क्रिटिसिज्म को। क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा दिल पे ले लेते हैं। जी अगर आप उसको दिल पे ना लेके उसको अगर आप अपने स्किल्स में शो करने की कोशिश करेंगे जी कि यस नाउ आई कैन स्पीक दिस वेरी फ्लुएंटली, तो वो आपको ना अच्छा बेनिफिट देगी।
अगर आप उसको सोचते रहोगे, बच्चे क्या होता है सोचते रहते हैं कि इसने मेरे को ऐसे जी, बोला, जी। इसने मेरे को वैसे बोला, है ना? तो वो क्या होता है, वो दिल पे ले लेते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो बोलते ही नहीं है। कई बार बच्चों के साथ क्या होता है, क्लास में अगर टीचर ने ये पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बोलो, जी, तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम से ना वो रिप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। जी, वो अपनी बात को रखते ही नहीं है, कि इस डर से कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, है ना? बट वो फियर को आपको हटाना है। जब आप गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। जी, गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आगे का स्कोप ही नहीं है। और हेजिटेशन के लिए एक ही पॉइंट है कि प्लीज हेजिटेट ना करें, क्योंकि उन बच्चों को ना इंग्लिश आती है, वो बोल सकते हैं, सब कुछ जी, है, बस वो झिझक के मारे नहीं बोल रहे हैं। और झिझक जो है, अगर हम टीचर्स की बात करें तो ये हम टीचर्स का एक एफर्ट होना चाहिए कि बच्चों को इतना बुलवाएं कि उनका हेजिटेशन जो है ना वो जी, निकल जाए, जी, उनको थोड़ा एनकरेज करें, मोटिवेट करें। जी, बट इफ समझ लो कि कोई स्टूडेंट जो है वो खुद से अपना प्रैक्टिस करना चाहता है, तो द बेस्ट थिंग इज कि बी कॉन्फिडेंट। आपको आता है, जस्ट जी, बी श्योर, वही आपकी वाली बात है सर, जी, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं करेक्ट हूँ, मैं जी, अपनी बात सही बोल रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं कन्वे कर दूंगा टू अदर पर्सन। जी, हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़े से नए वर्ड्स सीखने पड़े, थोड़ा से इनोवेशन लाना पड़े, थोड़े से न्यू वर्ड्स सीखने पड़े, क्योंकि आए जी, दिन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में काफी डायनामिक जी, लैंग्वेज है, तो बिल्कुल। चेंजेस आते रहते हैं इन प्रोनाउंसिएशन, इन्फ्लुएंसी, या न्यू न्यू वर्ड्स आते रहते हैं। सो यस। जी, बिल्कुल। यू नेवर कैन लर्न ऑल द वर्ड्स बिकॉज़ कहा जाता है कि हर दिन अंग्रेजी में हज़ारों नए शब्द जुड़ते हैं। सारे वर्ड्स तो हम लर्न नहीं कर सकते, बट जो वर्ड्स हमें पता है, उन्हें हम समझदारी से, अच्छे से यूज़ करके, अच्छे तरीके से बोल ज़रूर सकते हैं। तो इनफ होता है। हाँ, कुछ-कुछ जो ज़रूरतें हैं, उसको तो आपने धीरे-धीरे फिर कमी को दूर करना ही होगा और कहीं न कहीं यही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यही सही बात है, बिकॉज इफ यू सी इंग्लिश में रोज इट्स अ डायनामिक जी, लैंग्वेज, जी। ठीक है? रोज कोई ना कोई चेंज होता है। जी, कभी कभी अगर आप देखो तो बड़ा ही करेक्ट वो है कि ज्वेलरी, पहले जी, ज्वेलरी बोलते थे, अब जी। आजकल उसका करंट जी, प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी ज्वेलरी। ज्वेलरी उसे बोला जाता ज्वेलरी, है। जी। जी, ठीक है, पहले एनवेलप था, अब ऑनवेलप है। जी, पहले एंटरप्रेन्योर था, अब एंटरप्रेन्योर है। जी, जी, सो यू हैव टू सी कि कहाँ किस दिशा में लैंग्वेज जा रही है। जी, इफ यू वांट टू लर्न दैट लैंग्वेज, जी, बी ओपन टू लर्निंग। आप अगर आप ये मान के चलोगे ना कि अच्छा मैंने इस लेवल तक पहुंच गया, नाउ आई हैव लर्नड, इनफ है मेरे लिए, बिल्कुल। तो क्या होता है आपका ग्रोथ रुक जाता है। जी, ओके, लर्निंग जो है ना वो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, यस, सिर्फ यस। इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं, बट इन लाइफ। कोई छोटा सा बच्चा भी आके आपको कोई ऐसी चीज सिखा सकता है जो आपको आज तक जी, शायद जी, नहीं पता बिल्कुल। हो, जी, है ना? तो लर्निंग के लिए कोई एज, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। क्राइटेरिया, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इट जस्ट हैपेंस थ्रू आउट एंड थ्रू आउट, जब तक आप जिंदा हैं। जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वी ऑल आर द लर्नर्स थ्रू आउट आवर लाइफ। हम पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग की कोई सीमा नहीं होती और कहीं न कहीं यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। आपके अंदर झाँकना होगा आपको, आपकी कमी दूर करनी होगी, तभी जाकर कहीं न कहीं परफेक्शन लाना होगा। समय के अनुसार चलना होगा, क्योंकि समय तो कहीं न कुछ बदलाव लाता रहता है, तो उसके हिसाब से ही हमें चलना होगा और तभी जाकर हम अपने आप को एक उस जो टारगेट जो हमने लिया हुआ है, उस तक पहुँच पाएँगे। और राइट। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आपने बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाया कि आप जुड़कर जो है अपने एक्सपीरियंस को साझा करना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू टूक पार्ट। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमें और हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो कुछ एक नया एक्सपीरियंस समझें और जो भी समस्याएँ आती हैं उनको जो है दूर करने का प्रयास करें किस तरह से। और I'm not sure that I am a good speaker, but I'm sure that you did quite well. जी, जी बहुत ही अच्छा रहा सेशन। Thank you very much for having me, No, no, sir. no, And it's my pleasure. last thing for all the audience, if you guys are interested, I am a public speaking and creative Yes. writing expert at Planet Spark, and I will be holding a free webinar. एंड मैं उसकी लिंक्स सर के साथ शेयर कर दूंगी, जी, ताकि बिल्कुल। सर वापस से नीचे डिटेल्स में डाल देंगे। जी, जी। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी एंड वी कैन हैव अ चैट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।